Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm in chat if you all can hear me? Walaikum Assalam, Ibrahim, Sakina, Anas, and the rest. Thank you for your kind confirmation. And हाँ, तबीयत अल्लाह का शुक्र है काफी बेहतर है. Just taking rest. आज भी मैंने किसी कॉलेज में क्लास नहीं लिया. I was just home the whole day. Acha bhai, thank you very much everyone, particularly for showing up on the online class yesterday. Because I realized कि यार एक class हो जाती. अच्छा है कल there were a good number of participants in the online class. And let's take a quick recap of what we studied in the previous class. And in the previous class, we talked about the principle of superposition, where we discussed that when two waves meet at a point, the resultant displacement at that point is the algebraic sum of the individual displacements of the two waves at that point. तो दो waves जब किसी एक point पर मिलते हैं ना, तो उस point पर जो resultant displacement या net displacement की value होती है, that is simply equal to the algebraic sum of the individual displacements at that point. तो ये कल हमने कुछ example discuss किए कि let's say दो wave pulse हैं, they are coming towards each other. तो finally जब ये एक दूसरे से मुलाकात करती हैं, तो आप देखते हैं कि एकदम से इनका individual displacement add हो जाता है, and the resultant displacement gets bigger. But ये उसी वक्त होगा जब ये मिलेंगे. उसके बाद फिर देखो ना, दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए और जिसका जो डिस्प्लेसमेंट है, they will just follow that. फिर हमने कल ये पूरी एग्जांपल देखी जिसमें वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ये वेव है और एक ये वेव है, तो ये दो वेव्स हैं और ये दोनों वेव्स एक ही मीडियम के थ्रू जा रही हैं एक साथ. तो जब दोनों एक साथ जा रही हैं तो एक वक्त में दो वेव फॉर्म तो बनते हुए नजर नहीं आएगी आपको. जाहिर सी बात है, पॉइंट्स तो एक ही है ना रास्ते में. तो दे हैव टू डिसाइड कि भाई उन्होंने वेव एक्स की डिस्प्लेसमेंट फॉलो करनी है या वेव वाई की कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट फॉलो करनी है. सो व्हाट दे विल डू इज कि दोनों हर पॉइंट पर वो क्या करेंगे, दोनों वेव का उस पर क्या डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उन दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का जो सम आ रहा होगा ना, वो उसको फॉलो कर लेंगे. तो हमने कल देखा किस तरह से हमने दोनों वेव का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर उसको ऐड करके टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला. And then we came up with a new resultant waveform, जो कि यहाँ पे पर्पल कलर से बनी हुई है. So we studied that in the previous class. फिर हमने wave front का concept पढ़ा कि भाई what are wave fronts? Wave fronts are simply lines that are formed by joining all the points that are in phase with each other. या सारे crest को मिला दे line से, they are going to be your wave fronts. फिर हमने ये भी wave fronts की example पढ़ी. दो wave fronts के बीच का distance is wavelength, and wave fronts are always drawn perpendicular to the energy transfer. So we discussed this. फिर we discussed recalled in fact the concept of diffraction जो आपने वो लेवल से ही पढ़ा हुआ था, which is diffraction is simply the spreading or the bending of a wave when it passes through an opening. So and we discussed कि भाई diffraction is best observed when the size of the opening of the slit is roughly equal to the wavelength of the wave. ठीक है जी. तो ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद फिर हमने फेज डिफरेंस निकालना सीखा. We talked about कि दो waves के बीच का फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं. ठीक है जी. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए और दिस वाज इम्पोर्टेंट. एंड देन वी डिस्कस कि भाई अगर दो वेव्स हैं जो कि बिल्कुल एक जैसी हैं, उसके लिए करेक्ट टर्म होता है कोहेरेंट. वो भी हम डिस्कस करेंगे कोहेरेंट वेव का मतलब क्या होता है. अभी ऐसा है कि समझो दो वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी स्पीड सेम है,
and they meet such that the two waves are in phase with each other. जैसे ये जो red और ये जो green वाली wave है, ये दोनों बिल्कुल in phase हैं, तो when they will interfere, when they will superpose, तो उनके नतीजे में एक और बड़ी wave बन जाएगी. Like we call such interference as constructive interference because the two waves are in phase with each other. This is also an example of constructive interference. ये red और green का जो resultant है, वो this is this purple waveform which is the resultant of the red and the green wave. And we discussed कि भाई अगर दो waves इस तरह से मिलेंगे, दोनों बिल्कुल 180 degree out of phase हो जाए, so that would be a destructive interference, and the resultants at all the points are going to be the same. तो यहाँ तक आई थिंक हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था. तो यहाँ तक किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो प्लीज पूछ सकता है. एंड इफ देयर इज नो क्वेश्चन, एवरीवन प्लीज जस्ट राइट ऑल क्लियर ऑन चैट so I can confidently move forward. सर दोनों वेव्स की वेवलेंथ स्पीड सब सेम होगी. जी जी, वेवलेंथ स्पीड फ्रीक्वेंसी सब सेम होगी. दे विल फॉर्म कोहेरेंट वेव्स, तभी आप इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं. कल भी किसी ने एक सवाल पूछा था कि सर क्या इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन सेम थिंग है. हद तक कह सकते हैं, बट एक्चुअली इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने की ना कंडीशंस होती है. लाइक वो अभी हम आगे जाके भी पढ़ लेंगे, बट अगर हम थोड़ा पहले भी डिस्कस कर लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई देयर आर कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस. और उसके लिए सबसे आप आसान चीज समझ लो, द टू वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट. ठीक है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे प्रिसाइजली कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्या होता है. अभी बस यूं समझ लो, लाइक दे शुड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड ऑफ कोर्स स्पीड. ठीक है ना. इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है वो भी आगे जाके हम देखेंगे कि दे शुड हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस. इसका प्रिसाइजली मतलब क्या होता है, टू बी डिस्कस्ड लेटर. ठीक है, वो हो सकता है आज की क्लास के एंड में डिस्कस कर ले, या नेक्स्ट क्लास तक हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि आखिर लाइक कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्या होता है, एवरीथिंग. अच्छा, आज जो मुझे आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, एंड आई वुड रियली वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी अटेंटिव, बिकॉज आप ये कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन के जो फंडामेंटल्स है ना, वो हम आज की क्लास में सेट करेंगे. लाइक दिस इज समथिंग जो आप समझ जाओगे तो मुझे आगे के चैप्टर्स, यानी इस चैप्टर में आगे किसी पढ़ाना मेरे लिए आसान हो जाएगा. तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू ऑल कैन रियली लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके, अच्छा इमेजिन करें मेरे पास दो वेव्स हैं. ओके, और दोनों वेव्स बिल्कुल एक जैसे. ठीक है, कोहेरेंट है, दोनों की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब सेम. ठीक है, दिस इज वेव एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स वाई की जगह से कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, जी पे चलो बाद में आएंगे. ठीक है, so these are the waves that I have just drawn in front of you. Okay, this is A, this is B, this is C and so on. ठीक है, इन सब की वेवलेंथ सेम है, इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम है, इन सब का टाइम पीरियड सेम है. दे आर ऑल कोहेरेंट वेव्स. व्हाट इज देयर वेवलेंथ? इनकी वेवलेंथ है ये, दिस इज द वेवलेंथ लैम्डा. ओके, अच्छा देखिए, अगर मैं अभी चाहूं तो इन दो वेव्स का अगर मैं इंटरफेरेंस कराऊं, लेट्स अभी मैं ए और बी का इंटरफेरेंस कराऊं. सही है, अगर मैं इंटरफेरेंस करा रहा हूं बिटवीन ए एंड बी, किसका करा रहा हूं मैं इंटरफेरेंस? ए और बी का इंटरफेरेंस करा रहा हूं. अभी जब इनकी मुलाकात होगी तो अगर आप गौर से देखो तो दिस इज ए, दिस इज बी. यानी
टेक्निकली जब इनकी मुलाकात होगी, व्हेन दे विल मीट, तो ए का इस वक्त ट्रफ है और बी का इस वक्त क्रस्ट है, और जब क्रस्ट से ट्रफ मिलते हैं तो वेव्स बिल्कुल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, दे मीट लाइक एट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो उनका जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, बिकॉज एक का ट्रफ मिल रहा है तो एक का क्रस्ट मिल रहा है। अच्छा, एक चीज हमने पढ़ी थी फेज डिफरेंस, अभी हम एक चीज पढ़ने वाले पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टू वेव्स। पाथ डिफरेंस is simply the difference of the distance traveled by two। आप देख सकते हैं ए जल्दी स्टार्ट हुआ है, बी बाद में स्टार्ट हुआ है। ए ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना है? ये है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ए ने ट्रैवल किया, ऐसा ही है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना डिस्टेंस है जो ए ने बी के मुकाबले में एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस दैट ए हैज ट्रैवल्ड एज कंपेयर टू बी, तो मेरे ख्याल से आप कहेंगे सर अगर दिस इज वन वेवलेंथ तो दिस इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस, दिस इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस दैट ए हैज ट्रैवल्ड एज कंपैरिजन टू बी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं द पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी is lambda by 2, is half of the wavelength। और इस वक्त A और B का जो इंटरफेरेंस है वो इंटरफेरेंस है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस है? डिस्ट्रक्टिव। क्यों? अभी डिस्ट्रक्टिव के बारे में कैसे पता लग रहा है? क्योंकि सर ये मिलने बिल्कुल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। क्योंकि सर देखिए जब इसका, और उसका आसान तरीका जब इसका जब ट्रफ आ रहा है तो इसका क्रस्ट आ रहा है। मैं एकदम आसान देसी लॉजिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए और बी का इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव, और इनका पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। सही है भाई। अभी ये सब नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, अभी सब पढ़ूंगा, अभी सिर्फ सुनते रहो और दिमाग में बैठाने की कोशिश करो और ऑब्जर्व करो सारे बहुत गौर से। सही है, बिकॉज कंक्लूजन बड़ा मजे का, और कंक्लूजन मैं नहीं दूंगा, कंक्लूजन आप ही देंगे अभी खुद, बस आपने गौर से सुनना है। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं ए और सी की अगर मुलाकात हो जाए तो जल्दी से सारे मुझे बताएं कि क्या ये मुलाकात, क्या ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? जब ए और सी की मुलाकात होगी, सब बताएं मुझे, विल दिस बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? ठीक है ना सर, सबका एक ही जवाब आ रहा है सर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्योंकि देखिए जब ये मिल रहा है तो ये इन फेज इनकी मुलाकात हो रही है। जब उसका क्रस्ट है तो उसका भी क्रस्ट है, उसका ट्रफ है तो उसका भी ट्रफ है। अच्छा, अगर मैं कहूं क्या ए और सी ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है? आंसर इज नो सर, ए हैज ट्रैवल्ड एक्स्ट्रा डिस्टेंस देन सी। अच्छा सर, वो डिफरेंस कितना है डिस्टेंस का? तो जवाब आएगा सर अब की बात जो पाथ डिफरेंस है डेट इज लैम्डा। ऐसा ही है। तो ए और बी का इंटरफेरेंस है डिस्ट्रक्टिव, पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 2। ए और सी का इंटरफेरेंस है कंस्ट्रक्टिव, पाथ डिफरेंस है लैम्डा। अच्छा, अभी सुनते रहे, सारे सुनते रहे। अब आते हैं ए और डी की तरफ। अगर ए और डी की मुलाकात हो तो जब इसका ट्रफ है तो इसका क्रस्ट है, कोई बता सकता है ए और डी का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? ए और डी का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? सब एक आवाज में जवाब दे रहे हैं सर, डिस्ट्रक्टिव है। अच्छा, अब ये बता दो कि ए और डी का पाथ डिफरेंस कितना है? तो सर अब की बार पाथ डिफरेंस है 3/2 यानी कि 1.5 लैम्डा। तो जब पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 1 लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 1.5 लैम्डा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखते रहिए, देखते रहिए। अगर मैं ए और ई का इंटरफेरेंस कराऊं, अगर मैं ए और ई का इंटरफेरेंस कराऊं तो इनका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? इनका इंटरफेरेंस, अब सबका एक ही जवाब आ रहा है सर, कंस्ट्रक्टिव होगा।
ऐसा ही है ए और ई का इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस क्या है? अब की बार सर पाथ डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 2 लैम्डा। कितना लैम्डा? 2 लैम्डा। देखते रहिए, अगर मैं ए और एफ की बात करूं कि इनका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, तो मेरे ख्याल से अब आप सब कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि ए और एफ का इंटरफेरेंस क्या होगा भाई? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और ए और एफ के पाथ डिफरेंस में कितना है? कितना पाथ डिफरेंस है सर? दैट इज नाउ 2.5 लैम्डा। ऐसा ही है। अच्छा जी, मैं जरा दोबारा पूरा बना देता हूँ। अब कोई मुझे बता दे ए और जी का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? तो मेरे ख्याल से सबका एक ही जवाब होना चाहिए, वो ये कि ए और जी का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा। इनका पाथ डिफरेंस कितना है? 0, बिकॉज दे बोथ हैव ट्रैवल्ड द सेम डिस्टेंस, यानी पाथ डिफरेंस हो गया 0। अब मैं हो जाऊंगा खामोश अगले 1 मिनट के लिए। आप सबने इस स्क्रीन को गौर से देखना है एंड यू हैव टू जस्ट रेज योर हैंड इफ यू सी अ ट्रेंड, एंड इफ यू सी के सर हाँ एक ट्रेंड है जो हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम कोई जनरल बात कर सकते हैं, क्योंकि सर आप ऐसा लग रहा है एक ही चीज रिपीट हो रही है सर, एक जनरल बात कर सकते हैं। तो क्या कोई जनरल ट्रेंड है जो इसको देखकर कोई बच्चा कंक्लूड कर सके? तो जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है भाई, एक तो सबसे अच्छी बात की जवेरिया और फातिमा ने कि सर पाथ डिफरेंस आप 0.5 लैम्डा 0.5 लैम्डा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पर हसनैन मोहम्मद अली कहते हैं सर होल नंबर्स पे कंस्ट्रक्टिव है। सदके जाओ तुम्हारे हसनैन, बहुत प्यारी बात की है। कंस्ट्रक्टिव इज ऑलवेज व्हेन देयर इज अ होल नंबर। इसको थोड़ा सा बेहतर करेंगे, बट दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड। व्हेन डिस्टेंस यानी पाथ डिफरेंस कहना चाह रहे हैं बाय लैम्डा इज इंक्रीज, इट इज कंस्ट्रक्टिव। देखो अब मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों का यही कंक्लूजन सब, और यही मैं इसको अब फॉर्मल कर देता हूँ थोड़ा सा बेहतर करके। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं इन सारी एग्जाम्पल्स को सामने रख के, एक जनरल रूल समझाना चाह रहा हूँ। वो ये कि देखें, जब भी दो वेव्स की मुलाकात होती है और दोनों कोहेरेंट है, मतलब दोनों बिल्कुल एक जैसी वेव्स हैं, दोनों की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब कुछ सेम है, तो जब इनकी मुलाकात होती है तो सोर्स से दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, आप वो डिस्टेंस निकालें और फिर उसको माइनस कर दें, यानी डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस निकाल दें ट्रैवल्ड बाय द टू वेव्स। अगर दो वेव्स का पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस नहीं, पाथ डिफरेंस ऑफ द टू वेव्स अगर के वो है 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, या 0, या 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, then the interference is constructive interference। अगर दो वेव्स का पाथ डिफरेंस है 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 लैम्डा, कितना है? 0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा 3.5 लैम्डा 4.5 लैम्डा एंड सो ऑन। तो ऐसे में उन दो वेव्स का जो इंटरफेरेंस होगा दैट विल बी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको मैथमेटिकली जनरल रूल में ऐसे लिखते हैं कि इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज n lambda, where n is a whole number, means n can be 0 1 2 3 4 5, yani if the path difference is 0 1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 lambda 5 lambda, then the interference is going to be a constructive interference. If the path difference between two waves is equal to n plus half lambda, again n is a whole number, so path difference यानी n की वैल्यू होगी 0 plus half is 0.5, 1 plus half is 1.5, 2 plus half is 2.5, 3 plus half is 3.5 lambda। तो अगर पाथ डिफरेंस is 0.5 1.5 2.5 3.5 lambda and so on, then the interference is going to be equal to or going to be a destructive interference। तो देखिए
हम कहते हैं अगर जनरल रूल ये है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस हैज टू बी 0 और 360। ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि भाई द टू वेव्स दैट शुड मीट, उनके बीच का व्हेन दे आर मीटिंग उस वक्त अगर फेज डिफरेंस 0 या 360 है तो द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। और अगर पाथ डिफरेंस है n लैम्डा, जबकि n का मतलब है 0 1 2 3, वो होल नंबर हो सकता है, n इज अ होल नंबर, then the interference is going to be a constructive interference. Similarly for destructive interference, ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि दो वेव्स का फेज डिफरेंस होना चाहिए 180 डिग्री। बट एक और चीज है जिसे कहते हैं पाथ डिफरेंस, विच इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टू वेव्स। अगर वो है n प्लस हाफ लैम्डा, where again n is 0 1 2 3 4 yani a whole number, then the interference is going to be a destructive interference. कितने लोग हैं जो अब तक मेरी इस बात से सहमत हैं? Just write all clear if you are clear till now. ये एक बहुत कॉमन सवाल है सर, अगर फेज डिफरेंस 180 या 0 के अलावा हो तब भी इंटरफेरेंस हो जाएगा। मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था ना, बट वो इंटरफेरेंस ना कंस्ट्रक्टिव होगा ना डिस्ट्रक्टिव होगा। बस आप कह सकते हो कि हाँ भाई लाइक इंटरफेरेंस हो गया, सुपरपोजिशन हो गई। सही है भाई। कोई 40 प्लस बच्चे इस वक्त क्लास में सारे एक्नॉलेज करें ये बड़ा फंडामेंटल रूल है, और ये अभी बात शुरू हुई है, अभी बात खत्म नहीं हो गई है, इसलिए आप सबने मुझे बहुत गौर से सुनते रहना है। अब देखिए, अब देखिए सिचुएशन ये है कि हमने बोला भाई इसे कहते हैं आमतौर पर कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी मैं बस एक चीज ऐड कर रहा हूं, वो ये कि ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस है या ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस है, याद रखिएगा इन कंडीशंस के एप्लीकेबल होने की भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज दैट वुड बी टू मच ऑफ एन इंफॉर्मेशन। अभी एक चीज, इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका ये है कि पहले एक चीज को अच्छी तरह से समझ लो, फिर उसकी और कॉम्प्लिकेशन में जाओ, वरना फिर दिमाग आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बड़ा स्लो स्लो डे वन से बेस आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको बस जहन में रखना, बस इतनी बात मेरी याद रख लो कि जब ये कंडीशन समझ आए तो बस याद रख लेना कि सर पाशा ने कहा था कि इनके एप्लीकेबल होने की भी एक कंडीशन है। वो इतनी मुश्किल नहीं, मैं बता दूंगा आगे जाके, ठीक है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा हौला रखना है, ठीक है ना। वो कंडीशन ये है कि बोथ द वेज मस्ट स्टार्ट इन फेज। अब इसका क्या मतलब है वो आप टेंशन नहीं लो, आगे जाके हम पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें जो मैं शुरू में बहुत हल्का करके बता रहा हूँ, फिर मैं उसकी डेप्थ आगे जाके बताऊंगा। एंड द ओनली रीजन इज कि आई डू नॉट वांट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन योर हेड एक साथ, क्योंकि फिर उसको प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो अभी आपने बस इतना याद रखना है कि भाई जब दो वेव्स मिलेंगी एंड यू वांट ऑब्जर्व इंटरफेरेंस, तो बिल्कुल इंटरफेरेंस हो जाएगा उनका। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये है कि लाइक उनका पाथ डिफरेंस जो है ना वो एन लेमडा होना चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस शुड बी एन प्लस हाफ लेमडा। और अगर फेज डिफरेंस की बात करो तो वो तो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि if the two waves are meeting in phase then the interference is constructive, if they are meeting out of phase then the interference is going to be destructive interference, ठीक है। अच्छा अब देखिए एक चीज समझे, जो पाथ डिफरेंस है ना वो सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लेमडा में इंपॉर्टेंट है कि भाई कितने लेमडा का पाथ डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेव्स हैं, एक वेव x है और एक वेव y है, ठीक है। लेट्स से वेव x has traveled a distance of 20 centimeter and y has traveled a distance of
16 सेंटीमीटर। और इन दोनों की वेवलेंथ डेफिनेटली सेम होनी चाहिए अगर मैं इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। एंड लेट्स से दैट वेवलेंथ इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है। या मेरे पास एक और सिचुएशन है जहां पर x ने ट्रैवल किया है 20 सेंटीमीटर और y ने ट्रैवल किया है 18 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी लेट्स से वेवलेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है तो मैं सिंपली माइनस कर दूंगा, भाई इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक ने 20 ट्रैवल किया, एक ने 16 ट्रैवल किया ना। तो पाथ डिफरेंस इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टू वेव्स। दिस इज गोइंग टू बी 40 माइनस 16 फॉर 20 माइनस 16। तो 20 में से 16 करो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। मैं करके भी लिख के दिखा ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। तो डेट्स 20 माइनस 16 यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है। यहां पर अगर मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है तो दैट इज गोइंग टू बी 20 माइनस 18 यानी के 2 सेंटीमीटर। समझ रहे हो आप मेरी बात? बट अभी ये पाथ डिफरेंस मेरे किसी भी काम का नहीं है जब तक कि मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ लेमडा ना निकाल लूं। जब तक कि मैं इसे लेमडा की फॉर्म, सेंटीमीटर्स या मीटर्स का पाथ डिफरेंस किसी काम का नहीं है अनलेस के इट इज डिटरमिन्ड इन द फॉर्म ऑफ लेमडा। अब पाथ डिफरेंस जैसे इस केस में 4 सेंटीमीटर है और वेवलेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं लेमडा की फॉर्म में निकालना चाहूं तो कितने लेमडा का पाथ डिफरेंस है? इस केस में पाथ डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर और वेवलेंथ भी 4 सेंटीमीटर है। तो टेक्निकली कितने वेवलेंथ के बराबर है पाथ डिफरेंस? 1 वेवलेंथ के बराबर है ना भाई। वेवलेंथ इज 4 सेंटीमीटर और पाथ डिफरेंस इज आल्सो 4 सेंटीमीटर। तो वो तो आप वैसे ही बता सकते हो कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस 1 लेमडा है, बट तरीका ये होता है कि भाई कितना था पाथ डिफरेंस 4 और वेवलेंथ कितनी थी। तो पाथ डिफरेंस को जब आप लेमडा से डिवाइड करते हो ना तो आपको मिल जाता है पाथ डिफरेंस इन लेमडा। पाथ डिफरेंस अगर आप सेंटीमीटर मीटर में निकाल लो उसको आप सिंपली क्या करो, वेवलेंथ से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द पाथ डिफरेंस इन लेमडा। आपको पाथ डिफरेंस किससे मिल जाएगा बेटा? लेमडा में मिल जाएगा। सिमिलरली कोई मुझे यहां बता सकता है पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस वैसे तो 2 सेंटीमीटर है लेकिन वेवलेंथ कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर। तो पाथ डिफरेंस लेमडा में कितना हो गया सर? जो भी आपका पाथ डिफरेंस है ना उसको आप लेमडा, यानी इस केस में 4 सेंटीमीटर है, उसको आप 4 से डिवाइड कर दे तो यू विल गेट 0.5 लेमडा। आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो हमें पाथ डिफरेंस ना सिर्फ सेंटीमीटर में या मीटर में निकाल के कोई फायदा नहीं है जब तक कि हम पाथ डिफरेंस लेमडा में निकालना ना सीख ले। कि भाई इन द फॉर्म, वो बहुत आसान होता है कि आप पार्ट डिफरेंस निकाल लें, सेंटीमीटर में निकाल लें, मीटर में निकाल लें, जो आपको आसान लगता है। बट उसके बाद चुप से जो आपकी वेवलेंथ है दोनों की सेम होनी चाहिए ना, तो जो भी दोनों की वेवलेंथ है उससे आप डिवाइड कर दो। तो व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट द पाथ डिफरेंस इन लेमडा। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक आप सारे मेरे साथ हो? अब आप बताओ कि हाँ भाई पार्ट डिफरेंस 1 लेमडा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पार्ट डिफरेंस 0.5 लेमडा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सारे यहाँ तक मेरे साथ हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन दूं आपको? सही है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। दो वेव है, सोर्स ए और बी दोनों से वेव प्रोड्यूस हो रही है और बीच में एक पॉइंट है, पॉइंट एक्स, जहां इनकी मुलाकात हो रही है। ठीक है। बी ने ट्रैवल किया 23 सेंटीमीटर और एक्स ने ट्रैवल किया 18 सेंटीमीटर। इज नॉट अ फिट टू स्केल डायग्राम। तो इसने 23 और इसने 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है। सोर्स ए एंड बी वाइब्रेट इन फेज विद ईच अदर, ये तो कंडीशन है जिसपे वॉलर रूल एप्लीकेबल होता है, एंड प्रोड्यूसेस वेव्स दैट have the same wavelength and frequency and amplitude. Suggest which interference will be observed when they meet at x. x पर सिर्फ आपने ये बता देना है कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आपको वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी, दो वेव्स, दोनों की वेवलेंथ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। चलो भाई जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ भाई। पाथ डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है और कंक्लूजन बताओ कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। चैट पे सब पाथ डिफरेंस ही बताएं मुझे। लेमडा में बताएं पाथ डिफरेंस, लेमडा में।
फायदा लेमडा बताएं, कितने लेमडा का पाथ डिफरेंस है? देखिए पाथ डिफरेंस कैसे निकलता है, दोनों वेव ने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको माइनस करते हैं। पाथ डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टू वेव्स। तो एक ने ट्रेवल किया है 23 सेंटीमीटर्स और एक ने ट्रेवल किया है 18 सेंटीमीटर्स। तो 23 माइनस 18 इज 5 सेंटीमीटर्स। पाथ डिफरेंस तो आ गया 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये अभी मेरे किसी काम का नहीं है, बिकॉज मैं कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकता अगर पाथ डिफरेंस मुझे सेंटीमीटर्स या मीटर्स में गिवन है। आई नीड पाथ डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ लेमडा। मुझे लेमडा की फॉर्म में पाथ डिफरेंस चाहिए कि भाई 1 लेमडा है, 2 लेमडा है, 2.5 लेमडा है, कितना है। वो बहुत आसान है सर, अगर पाथ डिफरेंस आ गया ना 5 सेंटीमीटर्स, अब आपको पता होना चाहिए वेवलेंथ कितनी है। वेवलेंथ है 2 सेंटीमीटर्स, तो आप पाथ डिफरेंस को डिवाइड कर दें विद वेवलेंथ, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 2.5 लेमडा। समझ रहे हो आप मेरी बात? और जब पाथ डिफरेंस 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 लेमडा हो तो द इंटरफेरेंस इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या आप तमाम खवातीनो हजरात मेरे साथ हैं? बोलो नो। अतीक 1.25 क्यों आ रहा है तुम्हारा बेटा? अतीक आपको समझ आया? मोहम्मद मेहद बेटा आपका भी 1.5 आ रहा, आप भी चेक करें अपना आंसर। बाकी सारे लोग मेरे साथ हैं? यस। अगर वेवलेंथ दोनों की डिफरेंट होगी ना, इंटरफेरेंस ही नहीं होगा, वो इंटरफेरेंस नहीं कहलाएगा, वो सिंपली सुपरपोजिशन हो जाएगा। बिकॉज दोनों वेव्स फिर कोहेरेंट नहीं रहेंगी, इसलिए दोनों की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड सेम होना बहुत जरूरी है। अभी हम पढ़ेंगे इस चीज को आगे जाके और डिटेल में। क्या आप सारे बच्चे मेरे साथ हैं? बेटा 2 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। हाँ सो अभी तक हमने सिंपली पढ़ लिया पाथ डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टू वेव्स एंड स्टेट व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट वेव। अभी काफी देर से इस तरह के क्वेश्चंस हो रहे थे ना कि सर लाइक अगर दोनों वेव्स की लेट से जिनका आप इंटरफेरेंस कराना चाह रहे हैं उनका वेवलेंथ अगर सेम ना हो और ये ना हो वो ना हो तो सर फिर कौन सा इंटरफेरेंस होगा। देखिए याद रखिएगा, इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन का डिफरेंस अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो आमतौर पर वो यही कहते हैं कि भाई टेक्निकली इंटरफेरेंस इज आल्सो अ सुपरपोजिशन, बट फर्क ये कि इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए यू नीड कोहेरेंट वेव्स। यानी अगर आप देखना चाह रहे हो ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप देखना चाह रहे हो, तो सर उसके लिए दो वेव्स का कोहेरेंट होना जरूरी है। अब कोहेरेंट का मतलब दोनों की वेवलेंथ सेम हो, दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट सेम हो, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो। बट इसको एक स्टेटमेंट में बड़े खूबसूरती से समराइज किया जाता है और एग्जाम में बहुत पूछते हैं, 1 मार्क का ना। जब आप पास्ट पेपर्स करेंगे आपको बहुत फ्रीक्वेंटली नजर आएगा 1 मार्क का क्वेश्चन, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट वेव, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट वेव्स। और इसका जवाब है 3 मैजिकल वर्ड्स एंड दैट आर कांस्टेंट फेज डिफरेंस। आप बस लिख दो कांस्टेंट फेज डिफरेंस, खत्म। दो वेव्स जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, दो वेव्स जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, दे आर, दो वेव्स जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, दे आर कॉल्ड द कोहेरेंट वेव्स। अब वेव्स दैट हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कोहेरेंट। दो वेव्स कोहेरेंट होंगी कब? ये उसी वक्त पॉसिबल है जब उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली उनकी स्पीड सेम होगी। बट इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर कोहेरेंसी का मतलब क्या है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। चलो एग्जाम में तो आप लिख के आ जाओगे, 1 मार्क मिल जाएगा कांस्टेंट फेज डिफरेंस लिखने पे, बट इसका मतलब क्या है इसको समझने के लिए ऑल ऑफ यू विल हैव टू प्लीज लुक इनटू दिस एग्जांपल वेरी केयरफुली। देखिए आपके पास एक वेव है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राफ है, ठीक है ना। आपका एक और वेव है,
अगर आप देखें ना तो ये जो रेड और पर्पल जो मैंने दो वेव्स आपके आगे बनाई, इन दोनों वेव्स का वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी सब कुछ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम सिमिलर वेव्स, ठीक है ना। सिर्फ फर्क है कि दोनों इन फेज में, लाइक एक थोड़ा आगे निकला हुआ, एक थोड़ा पीछे रह गया, ऐसा ही है ना। अगर मैं आपसे अभी कहूं यार इन दो वेव्स का फेज डिफरेंस बता दो, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, तो इनका फेज डिफरेंस कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स? यार एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ एम्पलीट्यूड, इसीलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। कंस्ट्रक्टिव के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, डिस्ट्रक्टिव ऑब्जर्व करने के लिए एम्पलीट्यूड सेम करना पड़ेगा। अभी इनका फेज डिफरेंस 90 है, क्या सारे लोग एग्री कर रहे हैं इसके ऊपर? ये क्यों मिल रहा है बार बार? ये कंप्लीट वेव है आपके पास, कल ही सीखा था ना हमने। इफ कम अभी कोई कह रहा था फेज डिफरेंस जरा रिपीट करते हैं, वो जरा गौर से सुन ले यहाँ पे। एक वन कंप्लीट वेव इज 360 डिग्रीज, ठीक है भाई। अब आधी वेव कितनी हो जाएगी? 180 डिग्रीज, ओके। लेट्स से ये वेव एक्स है, ये वेव वाई है। अगर मुझे दो वेव्स का फेज डिफरेंस निकालना है तो मुझे बस ये देखना है कि भाई दोनों का ना मैं स्टार्ट पॉइंट देख लूं, ठीक है। क्या देख लूं? दोनों का स्टार्ट पॉइंट देख लूं। तो ये है रेड और ये रही पर्पल वाली वेव। इन दोनों का ये रेड का स्टार्ट पॉइंट है और ये पर्पल का स्टार्ट पॉइंट है, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 90 डिग्री। अब समझने की बात ये कि अगर इनका 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है ना, तो जरा गौर से देखिएगा मुझे, तो अब ये थ्रू आउट 90 डिग्री है, ये थ्रू आउट 90 डिग्री है। आप समझ रहे हो मेरी बात? लाइक अगर एक वेव दूसरी वेव से 90 डिग्री आगे है तो मुसलसल 90 डिग्री आगे ही है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आगे जाके आपने देखा फेज डिफरेंस कुछ और हो गया। ये पॉसिबल ही उस वक्त जब दोनों की वेवलेंथ सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उनका भी फेज डिफरेंस कांस्टेंट ही रहेगा। अगर एक वेव 90 डिग्री आगे है तो वो हमेशा फिर 90 डिग्री आगे ही रहेगी, अगर एक वेव 90 डिग्री पीछे तो वो हमेशा 90 डिग्री पीछे ही रहेगी। सिमिलरली मैं आपके आगे एक और वेव बनाता हूँ, तो बता सकता है ये जो ग्रीन और रेड वाली वेव है इनका फेज डिफरेंस कितना है? 180। रेड और ग्रीन वाली का फेज डिफरेंस कोई बता सकता है कितना है? फेज डिफरेंस लेमडा बाय 4 नहीं होता, फेज डिफरेंस डिग्रीज में होगा। जल्दी बताएं भाई। खतीजा वाजिद 180, सकीना 180, मेहद 180, बिल्कुल सही है। फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? अब 180 है ना, तो अब तुम गौर से देखो तो थ्रू आउट 180 है। समझ लो, अगर तुम सिर्फ इस वक्त रेड और ग्रीन वाले को ऑब्जर्व करो ना, क्योंकि दोनों एक जैसी वेव है ना, तो थ्रू आउट 180 ही चल रहे हैं ये। नजर आ रहा है आप लोगों को? थ्रू आउट 180 है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि भाई ये जितनी भी वेव्स है ना, फॉर एग्जांपल ये तीसरी वेव मैंने z बना दी है, तो मैं कहूंगा फेज डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 90, फेज डिफरेंस बिटवीन x एंड z इज 180। सही है ना? एक और मैं और बना दूं एकदम यहाँ 20 से निकाल के, ठीक है। लेट्स से दिस इज क्या नाम है, दिस इज वेव p। तो ये और अगर ये 90 है तो ये उसका और आधा हो गया 45 डिग्रीज। बट इन सब का हुस्न ये है कि ये सारी वेव्स, चाहे वो p हो, x हो, y हो, z हो, ये सब का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। एक वेव दूसरी वेव से फिक्स, या तो 180 डिग्री आगे तो थ्रू आउट 180 डिग्री आगे। एक वेव दूसरी वेव से अगर 90 डिग्री पीछे तो थ्रू आउट 90 डिग्री पीछे। तो हम कहेंगे कि p, x, y, z आर कोहेरेंट वेव्स as they have a constant phase difference throughout, इनका phase difference fix है। एक बार आपने निकाल लिया 90 डिग्री तो अब वो थ्रू आउट 90 डिग्री है। एक बार निकाल लिया 180 तो थ्रू आउट 180 है। आपको ये ज्यादा अच्छा उस वक्त समझ आएगा जब मैं आपके आगे एक ऐसी एग्जांपल दूं जहां पे दो वेव्स का फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना हो। जैसे देखिए ये दो वेव्स हैं, सही है। मैं आपसे कहता हूँ यार एक काम करो, इनका फेज डिफरेंस निकालो, इनका फेज डिफरेंस निकालो। अब आप बोलेंगे सर शुरू में तो सीन बड़ा ऑन है, ये ब्लू और ग्रीन दोनों को अगर आप देखेंगे ना सर, शुरू में तो फेज डिफरेंस 0 है, दोनों ने
साथ जीने और मरने का वादा किया। देख रहे हो, ये 7 ऊपर जा रहा है, ये भी 7, लेकिन यहाँ पे आके ग्रीन ने एकदम से बोला यू डिजर्व बेटर, और वो अपने रास्तों पे चल दिया, और ब्लू वाला अपने रास्तों पे चल दिया। आप समझ रहे हो मेरी बात? अक्सर होता है ना इस तरह से कि शुरू में तो वादे होते हैं कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, और फिर एकदम से अचानक से रियलाइज होता है कि यू डिजर्व बेटर। अब देखो ना, और आप देखो ना आगे जाके एक पॉइंट है, ये दोनों 180 डिग्री हो चुके हैं। एकदम से दोबारा मुलाकात तो होती है बेटा, लेकिन फिर कैसे होता है, बिल्कुल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है, यहाँ पे फेज डिफरेंस 180 है। इन दोनों का कभी भी कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं कि एम्पलीट्यूड कम ज्यादा है, इसलिए कि सर वेवलेंथ का फर्क है, स्पीड्स का फर्क है, तो ऑटोमेटिकली कभी आपको लगेगा कि इन फेज है, कभी आपको लगेगा कि बिल्कुल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, कभी फेज डिफरेंस 90 होगा। देयर इज नो कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू waves. So ये दो waves are not coherent. समझ रहे हो मेरी बात? So the two waves are not coherent. अच्छा भाई सर, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो आपने इस वेवलेंथ क्यों मार, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं है, सारे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ्स हैं। सब पापा गेम वेव्स का फेज डिफरेंस भी 90 होगा। पीछे आ जाते हैं, पर्पल और ग्रीन का, हाँ इनका भी 90 डिग्रीज है, बिल्कुल ऐसा ही है। और कैसा, इट्स कांस्टेंट बिकॉज़ सेम वेवलेंथ, हाँ फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ऐसा ही है खदीजा। सही है। देखिए जवेरिया, मैं ये कह रहा हूँ एंड अनस, अभी ये दोनों वेव साथ साथ स्टार्ट हुए, ठीक है। इनका अभी शुरू में तुम्हें लग रहा है भाई ये 7 ऊपर जा रहे हैं, तो फेज डिफरेंस अभी शुरू में शायद तुम्हें 0 लगेगा, फिर एक पॉइंट पे तुम देखो ये अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, तो फेज डिफरेंस 180 हो गया। तो ये दोनों वेव्स कोहेरेंट नहीं है, मतलब इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, कभी आगे है तो कभी कोई पीछे है, तो कभी फेज डिफरेंस कुछ है, दैट इज नॉट अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस ना। अनस एंड जवेरिया, जवेरिया इखलास, आपको समझ आ रहा है बेटा? सही। जबकि यहाँ पर क्या है, जो मैंने पीछे आपके सामने जितनी भी वेव बनाई है वो सब एक जैसी है ना, टेक्निकली सबकी वेवलेंथ एक जैसी है। तो हो रहा है क्या है कि अगर कोई एक 45 डिग्री आगे तो फिर वो थ्रू आउट 45 डिग्री ही आगे, अगर एक 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है फिर थ्रू आउट 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो बेटा क्या आप सबको ये बात समझ में आता है कि व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट फेज डिफरेंस व्हेन द वेव्स हैव द सेम, नॉन कोहेरेंट में वेवलेंथ सेम नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा ही है मिकाइल। अगर वेवलेंथ सेम होगी तो फिर शायद स्पीड सेम नहीं होगी, ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में लेकिन आपने क्या लिखना है, व्हाट इज कोहेरेंट वेव, वेव विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्या आप सब यहां तक मेरे साथ हैं? आपने याद रखना है कि एक चीज है फेज डिफरेंस, जो हम मेजर करते हैं डिग्रीज में कितना, और एक चीज है पाथ डिफरेंस विच इज द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टू वेव्स। ओके, ये मेजर होता है, वैसे तो मीटर में कर लो, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, लेकिन फायदा क्या है कि आप इसको मेजर करें किसमें, इन द फॉर्म ऑफ लेमडा, ताकि आप प्रिडिक्ट कर सकें। बिकॉज हमने पढ़ लिया कि भाई जब इंटरफेरेंस क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए एन लेमडा, व्हिच इज वेयर एन इज अ होल नंबर, तो व्हिच इज 0, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन प्लस हाफ लेमडा। कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कि इन सारे कंडीशंस के एप्लीकेबल होने की भी एक कंडीशन है, तो वो कंडीशन क्या है, इंशाल्लाह विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है भाई।
तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ।